आज हमारे साथ हैं जय शर्मा जो कि सीनियर साइंटिस्ट है नोवार्टिस में। And I work in the biotech space with a focus on cell and molecular biology. ये पूरा लैब का प्रैक्टिकल है। ये पूरा जाता है एकदम स्टूडेंट्स को इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लैब्स के, कि जैसे इंडिया में करवाते हैं कि आज तुम एक ट्रांसफॉर्मेशन करोगे और अगले 2 हफ्ते बाद तुम एक अलग सा कंप्लीटली रैंडम टॉपिक है। ये पूरा 6 वीक का प्रोजेक्ट है जो उनको एक प्लाज्मिड डिजाइन करने से लेकर पूरा क्रिस्पर तक लेके जाता है। सिंगुलर तो वो एक्चुअली में काफी चीजें लर्न करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में एटलीस्ट। ये सब चीजें काफी अच्छी है। हाँ, Where we were trying to develop a gene therapy against a genetic disease called cystinosis. We are moving towards, one-time treatments instead of lifelong medications. We are moving towards personalized therapies. सबकी custom medicines बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक medicine सबको काम आ रही है। और फिर rare genetic diseases पे बहुत सारे potential cures आते जा रहे हैं। जो भी research pursue कर रहा है whether in academia or industry, that person will definitely connect with this conversation. क्यों PhD क्यों कर रहा है, मतलब why not try something else, मतलब go and find something else, build skills or anything. And people should know कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिशनल पाथ के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं रिसर्च में भी। ऐसा नहीं है कि बस PhD में आप एंटर कर लो एंड इट्स जस्ट एंड ऑफ द वर्ड। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं जय शर्मा जो कि सीनियर साइंटिस्ट है नोवार्टिस में, और आज ये अपने बारे में हमें बताएंगे कि कैसे ये नोवार्टिस में गए, कैसे इनकी जर्नी थी, कैसे इनकी रिसर्च ने इन्हें सपोर्ट किया इस पोजीशन तक पहुंचने में, और कैसे इनकी बाकी सारी चीजें हुई। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। तो जय, फर्स्ट वेल क्वेश्चन लेट्स से, क्या आप हमें थोड़ा बता सकते हैं, यहाँ जैसे सिंस हमारे चैनल में जो है काफी सारे स्टूडेंट्स हैं काफी, जो कि अभी जस्ट लेट्स से 12th से निकले हैं, जो काफी अभी अंडर ग्रेजुएट काफी लोगों ने शुरू करी है बैचलर्स से। तो क्या आप अपनी एक जर्नी एकदम स्कूलिंग टाइम से शुरू करके बता सकते हैं आप अभी तक कैसे पहुंचे, जस्ट सो बच्चों को एक आइडिया हो कि उन्हें एकदम हाई लेवल से शुरू करने की जरूरत नहीं है, वो एक जीरो से शुरू करके अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। Sure, yeah. So, firstly, thank you so much. Thank you for inviting me for this podcast. Just a brief overview. My name is Jay, and I'm a scientist at Novartis, and I work in the biotech space with a focus on cell and molecular biology. My journey wasn't very linear. I struggled academically early on, moving from India to the US for my masters, and I built my career like step by step through research labs, through transitioning into industry. So firstly, to start, like even from back in India, like I have always been a decent student in school. I feel above average in academics until 10th standard, and then I feel my academics took a steep downfall. I struggled a lot, particularly in the 11th and 12th standard, and then I took admission in DY Patil. I don't know if you've heard of the college name. DY Patil is in Navi Mumbai for my BTech in biotech course. And so my academic struggle pretty much continued throughout those 4 years of biotech as well. And I knew that I have not studied the subject, biotech really well enough to be able to pick a career. And I thought that getting a master's degree felt more like a very natural way of, going forward. And although I tried with all my sincerity to study and get good grades, but the concepts, the chapters just couldn't register in my brain for some reason. I don't know whether it was like the environment, the age, or I don't know what it was. And I felt like I couldn't understand concepts and found it extremely difficult to memorize. And as we say, ratta मारने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी. Rote learning wasn't just like getting me anywhere. Basically, I wasn't getting good grades and all. My confidence and self-esteem was at like all-time low. And I saw that around me that everyone who gets good grades or does well in class is more respected. And for someone who is like 15 or 16 years of age, their self-esteem is really connected to their academics. So if they are not doing well in school or college, it really hurts their confidence.
And it really didn't matter if, the students who were doing well in their class, if they really understood the concepts well or not. The fact that they scored well was the only thing that mattered, and I found that it was really unfair. And I felt like I want to restart and reset my life in the US, where like nobody will know me, where nobody will know my name, where nobody will know about my academic struggle in the past. And I had heard, like, for anyone who is in India has no idea about how things work in the US. So, like, as someone in their third year degree, I had heard about the education system in the US, that, it's a combination of theory and practical. It's not just rote learning, it's not just theory, it's not just, writing long answers in the exam and all of that. So, and since many of my friends in my batch were, preparing for the GRE exam, I thought to myself that, it will be a good opportunity to give it a shot and see if I, do okay in the GRE exam. And I remember scoring 1160 out of 1600, which was a decent score to get an admission for a master's degree here. So I applied and I got several admissions, and that's how I landed in the US. But I did feel like my career wasn't going anywhere. I just had no idea what would be the next step and like how to really move forward. But in the hindsight, I feel like it's just important to take the next best step. That's all you can do, and like don't worry about the subsequent steps that's gonna come later. So yeah. I think I share that thought with you, that schooling in India mostly is a lot more number focused and rote learning, ratta focused than anywhere else. क्योंकि नीट वगैरह एग्जाम्स में जब हुआ था, सब पूरा रटने वाला काम है उसमें शुरुआत से आखिरी तक. And I prepared for NEET for like 6 months and I just gave up. I was like, if I'm not enjoying it right now, I'm not going to enjoy it if I become a doctor. So I need to change fields. And the same thing with CSIR. So well, before in India, you have to do CSIR to give a PhD. And my specialization is molecular biology, viruses, and everything else. And CSIR was all, they were asking me about plants. And I was like, how is that relevant? Including with like interviews that I heard other people give. So I do agree with that. It's a bit rote learning thing, and it's बहुत सारे लोग एकदम दिल से ले लेते हैं कि हाँ मेरा अच्छे नंबर नहीं है, तो वो इस बाकी उन केसेस में काफ़ी अच्छा. इवन यहाँ पे अभी मैं ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट हूँ मैं, तो मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ मेरे को टीचिंग मटेरियल मिलता है, तो उस मटेरियल को देखते ही एक्चुअली यहीं पे पढ़ा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे ये पूरा लैब का प्रैक्टिकल है, और ये पूरा जाता है एकदम स्टूडेंट्स को इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लैब्स के, कि जैसे इंडिया में करवाते हैं कि आज तुम एक ट्रांसफॉर्मेशन करोगे और अगले 2 हफ्ते बाद तुम एक अलग सा कंप्लीटली रैंडम टॉपिक है. ये पूरा 6 वीक का प्रोजेक्ट है जो उनको एक प्लाज्मिड डिजाइन करने से लेकर पूरा क्रिस्पर तक लेके जाता है, सिंगुलर. तो वो एक्चुअली में काफी चीजें लर्न करते हैं. तो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में एटलीस्ट ये सब चीजें काफी अच्छी है. हाँ, एब्सोल्युटली. और आई थिंक जो मैंने अंडरग्रेड्स में पढ़ा था, आई थिंक आई हैड टू लाइक अनलर्न ऑल ऑफ इट व्हेन आई केम हियर. लाइक जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ, और यहाँ पे ऐसे क्वार्टरली बेसिस होता है, तो एवरी 3 मंथ्स में एग्जाम्स होते हैं. तो आई रिमेम्बर टेकिंग द फर्स्ट एग्जाम. इट वाज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास, फंडामेंटल्स टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सो आई थॉट कि ये तो मैंने पढ़ा है, ये सब तो मतलब ये तो अंडरग्रेड में भी था, तो आई वुड डू वेल इन दैट. बट जैसे क्वेश्चंस आए, एंड इट्स एग्जाम फॉर्मेट इज मोस्टली लाइक वेरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाइक, एंड लाइक शॉर्ट आंसर लाइक यहाँ पे. तो और क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि इफ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर, यू वोंट बी एबल टू गेट द राइट आंसर. और अगर आपको कंसेप्चुअली चीजें समझ में नहीं आई है, तो फिर यू विल प्रोबब्ली फेल. मतलब उतना तो टफ एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे. एंड आई सॉ कि मेरा जो पहला जो एग्जाम था, आई स्कोर्ड C plus or something. And even after giving the exam, I thought मेरा अच्छा गया एग्जाम, मतलब मुझे एवरेज तो आ ही जाएगा. But then it was like बहुत ही गंदा. C तो मतलब बहुत ही गंदा होता है इधर. वहां पे मैंने ऐसे जब आंसर्स मिलते हैं, तो you get the opportunity to like talk to other people also. Like मैंने क्या ऐसा like compare करा था आंसर्स basically.
तो I saw कि short answers में like the people who study here, like जो Americans हैं वो लोग एक sentence में answers दे रहे हैं और मैं भर रहा हूँ आंसर 4-4 सेंटेंस 5-5 सेंटेंस के ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट देन दैट वाजंट रियली नीडेड। इन लोगों को चाहिए कि टू द पॉइंट आप बात करो, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा है तो ही आपको आंसर आएगा, वरना वो जो एमसीक्यूज हैं उसके 4 ऑप्शंस हैं, वो 4 ऑप्शंस इतने क्लोज होंगे टू ईच अदर कि इम्पॉसिबल है कि तुम फ्लूक से तुम्हारा राइट होगा आंसर। तो आई फेल्ट कि मतलब मेरे को बिल्कुल तरीका ही बदलना पड़ेगा पढ़ाई करने का। और यहाँ पे जो इंडिया में जो मैं पढ़ के गया था, वो बहुत ही आर्केक और बहुत ही पुराना मटेरियल था। आई फील वो उतना अप टू डेट नहीं था जो जो कटिंग एज चीजें यहाँ पे पढ़ाते हैं, वो उससे थोड़ा नहीं बहुत ही डिफरेंट था। तो मुझे बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच ही स्टार्ट करना पड़ा। सो इवन दो आई जॉइन ए मास्टर्स प्रोग्राम, बट मैंने ऐसे ही पढ़ाई की जैसे मैं बैचलर्स फिर से कर रहा हूँ शुरू से स्क्रैच से। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देख के, या तभी यूट्यूब उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, थोड़े बहुत वीडियोस होते थे ऑनलाइन, वो देख के और ऐसे ही ऑनलाइन मटेरियल देख के पूरा अलग वे में फिर से स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो आई हैड टू स्ट्रगल। फर्स्ट सेमेस्टर बहुत टफ गया मेरा। तो जैसे अगर हम एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर मान लिया यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं, ये जो हैं काफ़ी लोग इंडिया से ही कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ वो सजेस्ट कर सकते हैं, कोई कुछ फंडामेंटल थिंकिंग जो चेंज करनी होगी अगर किसी को मान लिया यूएस वाली पढ़ाई करनी है बट यूएस ना जाके, जो कि उसे ऑनलाइन करना है, वीडियोस देखनी है, क्या करना है जिससे उनकी क्या थिंकिंग उनको चेंज करनी होगी, उनको किन चीज़ों में फोकस करना होगा कि वो एक इंडिया के बबल में ना रह जाएं, उनकी थिंकिंग पूरी हो जाए बट वाइल स्टेइंग हियर, और किसी को मान लिया पैसे नहीं है ज़्यादा खर्च करने के लिए, बाहर जाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। आई थिंक सबसे टॉप इसमें चीज आएगी कि कॉन्सेप्ट्स को समझने की ट्राई करो। डोंट ट्राई टू रोट लर्न थिंग्स। वंस यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद में एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है सब्जेक्ट, जो मुझे पहले नहीं लगता था। इंडिया में मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया था बायोटेक में, मुझे आया सच में इंटरेस्ट यहाँ पे आने के बाद, जब मैंने जेन्युइनली ट्राई किया कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ सब्जेक्ट को। एंड आई वॉज फोर्स्ड टू रियली डू ऑल दिस बिकॉज ग्रेड्स ही नहीं आ रहे थे। तो ग्रेड्स के लिए वो भी एक पुश था कि मुझे करना ही पड़ेगा अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। तो जब वो होने स्टार्ट हो जाते हैं, आई थिंक मजा आने लग जाता है बायोटेक में। सो डोंट थिंक ऑफ एजुकेशन एज जस्ट लाइक द मीन्स टू लाइक गेट गुड ग्रेड्स एंड गेट अ गुड जॉब। वो वाला मेंटालिटी थोड़ा सा अगर अपन चेंज कर सकते हैं तो बेस्ट है। Again, I would say like you have to become coachable. Like if you join a job, let's say as a fresher, or if you are in a university, कोई भी एक मेंटोर है वो आपको कोच कर पाए, ऐसा आपको कोचेबल बनना पड़ेगा उसके लिए। फॉर दैट यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर, you have to like really be open to ideas, you have to be open to criticism। आएगा क्रिटिक आएगा तो भी उसको ऐसे आराम से लेना है और उसको पर्सनली नहीं लेना है। एंड second, I would say, if you are, let's say, in your undergrads, and if you are thinking of aspiring to let's say to become a scientist in future, let's say आप PhD के लिए apply करने वाले हो या कुछ भी, I would say you have to think of becoming a good technician first rather than thinking of becoming a good scientist. And by a good technician I mean like as you do techniques, you have to be really clean with what you are doing। अपना lab notebook अच्छे से तुम्हें आना चाहिए कि कैसे तुम हर एक एक्सपेरिमेंट के डेटा को, हर एक एक्सपेरिमेंट के प्रोटोकॉल को अच्छे से आप मेंटेन कर पा रहे हो, आप अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग कर पा रहे हो। एंड these things like sound very obvious and very easy, but then यही चीजें हैं जो एक्चुअली हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में। Then you have to be genuine and sincere in the sense कि
whatever work that you're doing in your lab, your manager or like your supervisor should be able to rely upon your work. Like ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा impression ऐसे खराब होता जा रहा है कि तुम mistakes बहुत करते हो experiment में, या let's say if a scientist wants to go back to an experiment that they did like 3 months ago, और वो तुम्हें कुछ details पूछते हैं क्योंकि तुमने वो रन किया था, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तुमने लैब नोटबुक में अच्छी तरह से उसको डॉक्यूमेंट किया है और तुम्हें वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर करने आना चाहिए. सो दैट्स व्हाट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड दैट्स व्हाट बिल्ड्स रिलायबिलिटी. तो नो मैटर हाउ hardworking or sincere you are, but if your manager cannot trust your work, तो कुछ फायदा ही नहीं है. मतलब फिर आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है. फिर I would say learn how to communicate with different people, like not just with people in your own field, because like as you move forward, as you move to getting a job in industry, तुम्हें सिर्फ साइंटिस्ट लोगों से काम नहीं होगा. You should be able to talk to chemists, you should be able to talk to operations people, you should be able to talk to engineers. क्योंकि large biotech companies mein it's a lot of teamwork, right? It's not just a team of scientists, it's a team of engineers, team of chemists and all of that. So सबसे बराबर communicate करने आना चाहिए. And by communication I don't mean कि अच्छी English में बात करो या fluent रहो, वो वाली बात नहीं है. But you should know कि क्या what questions to ask and how to बेसिकली काम कैसे आगे बढ़वाना है, कैसे काम करना है उन लोगों के साथ मिलके. तो ये चीजें आनी चाहिए. फिर सॉफ्ट स्किल्स, एज एवरीवन सेज, बट देन आई फील कि उतने अर्ली करियर स्टेज पे मुझे सॉफ्ट स्किल का उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं फील हुई. आई फील कि it's obviously a good thing to start learning all those skills, but then it's not absolutely needed at that stage. ये इसकी जरूरत mostly पड़ती है when you have, let's say, अपने early career stage pass कर दिया है, अपने 4-5 साल job कर लिए हैं, and now you have to get promoted. तो next stage पे जाने के लिए that's when soft skills और वो networking skills really काम आते हैं. Or early career mein, like don't stress about it, but keep learning, like keep learning how to talk to people. Don't be shy, don't be nervous, don't be इतना डरने ऐसी कोई चीज नहीं है. एवरीवन स्ट्रगल्स और सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं. कोई भी ऐसे परफेक्ट लीनियर पाथ में तो नहीं ऊपर आया है. तो and when you talk genuinely to people, they tend to answer genuinely back to you. तो इसमें ये भी नहीं करना है कि जबरदस्ती क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या जस्ट टू फील कि ओ मैंने किसी से तो बात की सीनियर से, तो अच्छी चीज है, हो गया मेरा काम तो हो गया. एंड नेटवर्किंग को आई फील वो लोग उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते. there's a very traditional definition of networking where people feel कि I have to like go talk to unknown people, I have to go talk to people in like networking events and like try to impress them, talk about my achievements, accomplishments and all of that. But in my opinion, जो मैंने देखा है बहुत सारे networking events में जाके and by talking to a lot of people here, it doesn't really help when you're so I would say like don't try to be interesting in front of them, try to be interested in them. Basically when you talk to them, be genuinely interested in their career, in their journey, and your questions don't have to be really science related. लोगों को ये भी लगता है कि उन्हें टेक्निकली एकदम साउंड होना पड़ेगा या उन्हें बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए साइंस की, तभी जाके वो बात कर पाएंगे किसी सीनियर से. दैट्स नॉट नेसेसरी. you can talk to them about their career path, or genuinely like you can ask them कि अच्छा आपने मास्टर्स के बाद PhD नहीं की,
क्यों नहीं की, एंड इफ यू सी दैट अच्छा सिर्फ मास्टर्स करके भी दे आर एट लाइक अ वेरी सीनियर लेवल, so ask like very genuine questions like that, and people do tend to respond genuinely. And if let's say आप networking event में जा रहे हो, तो get some research done in advance, like know like किस किस से जाके बात करनी है, उसके बारे में, वो पर्सन के बारे में थोड़ा 10-15 मिनट्स का रिसर्च कर लिया, और क्वेश्चन प्रिपेयर करके गए। ऐसे नहीं कि वहां पे जाके वेग क्वेश्चंस पूछे कि हाउ हाउ डज अ डे इन योर लाइफ लुक लाइक, एंड ओपन एंड क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसे बहुत लंबे लंबे आंसर्स हो सकते हैं। लाइक डोंट मेक द अदर पर्सन think too much, right? Easy questions पूछो, specific questions पूछो, जो उन्हें ज़्यादा दिमाग में लगाना पड़े, सोचना ना पड़े। And just know that networking is a long term game. वो ऐसा नहीं है कि तुमने किसी से बात की और फटाफट तुम्हें उसने जॉब दिलवा दी। ऐसा तो नहीं होने वाला है, रियल वर्ल्ड में ऐसा होता ही नहीं है। तुम्हें ये एक्सपेक्टेशन से जाना ही नहीं है कि ये पर्सन मुझे जॉब दिलवाएगा, इसलिए मैं उससे बात कर रहा हूँ। आई फील कि वो जब हट जाता है ना, वो वाला जब अप्रोच और वो थिंकिंग जब हट जाती है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो वो फिर एक जेन्युइन कॉन्वर्जेशन रियली स्टार्ट होती है। सो या ये सारी चीजें जो आई फील इंडिया में रह के लाइक आई डिडंट लर्न, बहुत ही कंपटीशन वाली वो रहती थी हमेशा एनवायरनमेंट। तो लाइक ऑल यू जस्ट थिंक अबाउट इज हाउ टू बेसिकली एक्सेल, किसी और को नीचे करके या किसी और से आगे कैसे निकल जाए जल्दी से, बस यही माइंड में चलता रहता है पूरे टाइम। बट इफ यू रियली थिंक अबाउट कि थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू से देखो सिचुएशन को, और आराम से लो, इतना स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है कोई। सब लोग जो जिसने 12th में सोचा था मैं ये करूंगा, वो बहुत कम लोग होते हैं जो एग्जैक्ट पाथ फॉलो कर पाते हैं। बहुत लोगों की पिवट होती है, बहुत लोग इम्प्रूव करते हैं एज दे गो थ्रू। तो पहले से नेक्स्ट 10-15 ईयर्स डिसाइड करने की कोई नीड ही नहीं है। तो आई फील ये चीज का प्रेशर बहुत रहता है इंडिया में कि पहले से तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, वरना पीपल बड़े जज। होके क्या बनना है? हाँ वरना पीपल जज यू कि ओ तुम्हें पता ही नहीं है क्या करना है, ऐसे टाइप का। तो उसके Hmm. लिए लाइक डोंट स्ट्रेस टू मच, किसी को नहीं पता है क्या करना है आगे। तो Hmm. I quite liked your statement that you have to be a good technician before being a good scientist. Because I can like कभी सोचा नहीं था उस सेंस में, बट ऑन हाइंडसाइट आई कैन आई अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि अभी जब मैं मास्टर स्टूडेंट्स लेता हूँ अपने अंडर, तो सबसे पहले मैं उनका वही देखता हूँ कि काम कैसे कर रहे हैं वो। उसके बाद उनको एक्चुअली में कुछ सोचने का, क्योंकि इफ यू हैव टू ट्रस्ट देम बिफोर, and same case with your PI or anyone else. Your PI has to trust you that you'll do the work in the first place in order to give you something to think about. अगर उनको भरोसा नहीं हो कि हाँ तुम एक्चुअली में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो तुम्हें कोई ऐसी चीज देंगे जिसमें थोड़ा वो रहे, थोड़ा ओपननेस रहे इधर उधर जाने की, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ट्राई करने की। तो वो हाँ, वो काफी अच्छा स्टेटमेंट है। I'll copy that and I'll use that with my students. for sure Yeah. So actually next question जो मैं सोच रहा था उसको आपने खुद से ही बोल दिया एक बार में, बट क्या आप रीजंस लिस्ट कर सकते हो या फिर कुछ बता सकते हो कि आपने पीएचडी वाला रूट क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने डायरेक्टली? उसके बाद मैंने देखा कि आप टेक्नीशियंस और फिर रिसर्च असिस्टेंट और फिर उसके बाद सीनियर साइंटिस्ट वगैरह के रोल्स में चले गए। तो कोई रीजन था कि आपने चूज किया कि पीएचडी साइड नहीं जाना, या फिर वो बस जो ऑप्शन था वैसा था? ओ बहुत सारे रीजंस थे। सो मेरा जो मास्टर्स प्रोग्राम था, व्हेन आई फर्स्ट केम हियर इन 2011, my master's program was 1 year coursework and then 1 year full-time thesis internship थी, तो with some online courses also. बट जब मैंने वो जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था मेरा, थीसिस एक्सपीरियंस 1 year का, वो बहुत ही अच्छा गया वो मेरा। मतलब आई जेन्युइनली एंजॉयड वर्किंग इन द लैब। मतलब मेरी जो पीआई थी वो बहुत ही उसने बहुत अच्छे से मेंटोर किया मुझे। तो मुझे
and वो जो project था, it was a gene therapy project where we were trying to develop a gene therapy against a genetic disease called cystinosis. The idea was to use a lentivirus to deliver the gene therapy into patients. तो उसका जो डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी थी टू क्लिनिकल साइड, दैट एक्साइटेड मी अ लॉट। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा, ऐसे तुम लैब में काम करके यू कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट पेशेंट्स। लाइक उसका उसका जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो मुझे दिख रहा था। तो दैट्स व्हाट रियली एक्साइटेड मी। और मुझे लगा कि यू नो मेरे को रिसर्च अभी परस्यू करनी है आगे, एंड आई शुड गेट अ पीएचडी। तो इसीलिए एज आई फिनिश्ड माय मास्टर्स डिग्री, तो उस टाइम पे वी यूज्ड टू गेट लाइक 25 months of work visa. Basically, it's called OPT visa. It's called optional practical training. So basically, तुमने जो भी मास्टर्स की पढ़ाई की है उससे रिलेटेड तुम 25 months के लिए जॉब कर सकते हो। वो तुम्हें एक वीजा ग्रांट करते थे बेसिकली उस टाइम पे। उसके बाद में वो 3 साल हो गया, मेरे ग्रेजुएट होने के 2 साल के बाद वो 3 साल का हो गया। तो नाउ स्टूडेंट्स गेट मोर टाइम टू यू नो टू वर्क ऑन दैट वीजा। तो सिंस आई एंजॉयड माई इंटर्नशिप सो मच, आई थॉट कि मैं पीएचडी करूंगा। और पीएचडी में एडमिशन यहाँ पे काफी competitive है यूएस में। तो आई फेल्ट कि मेरे पास पब्लिकेशंस होने चाहिए पहले। तो फॉर मी टू गेट पब्लिकेशंस मुझे एकेडमिक लैब ज्वाइन करनी पड़ेगी, और डायरेक्ट इंडस्ट्री में वो बात नहीं बनेगी। तो मुझे एकेडेमिया ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि मैं पब्लिकेशंस कर सकूं। तो मैंने लैब ज्वाइन की, और फिर उसमें बहुत बहुत मेहनत, मतलब उसमें तो लाइक आई रिमेम्बर मेरा जो फर्स्ट जॉब था उसमें आई लॉस्ट लाइक आई यूज्ड टू वे 75 kgs or something, and I lost like 12 kgs in 6 months or something. Like इतना स्ट्रेसफुल जॉब था वो। दिन रात वीकेंड्स कुछ नहीं, कुछ मतलब सिर्फ वही करता था मैं पूरे टाइम। तो उसमें इतनी मेहनत की, और उसमें एक मेरा मिडिल ऑथर पब्लिकेशन आया, एंड देन इंटर्नशिप से भी मेरा एक सेकेंड ऑथर पब्लिकेशन आया। सो आई गॉट दिस कॉन्फिडेंस कि चलो अब तो पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, अब तो 2 पब्लिकेशन हो गए हैं, और अब तो हो ही जाएगा। सो आई थॉट माई प्रोफाइल इज लाइक सो गुड कि मुझे तो टॉप टीयर कॉलेज में हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही हाई रैंक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। आई अप्लाई टू लाइक स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, बड़े बड़े एकदम सीधा टॉप टीयर। एंड किसी से भी मैंने 7 जगह अप्लाई किया था, कहीं से भी रिप्लाई भी नहीं आया, मतलब रिजेक्शन ईमेल भी नहीं आया बेसिकली। तो तो और उतना वो एप्लीकेशन फीस वेस्ट हुआ, और वो जो एफर्ट एनर्जी वो सब तो गया ही साथ में। तो आई थॉट कि ओके, अभी स्ट्रैटेजी तो बदलनी पड़ेगी। एक और साल मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई किया, एंड दिस टाइम आई अप्लाई टू वेरी सेफ एंड वेरी ऐसे मीडियम टीयर यूनिवर्सिटीज, और 1-2 एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज में गया था। तो आई गॉट 4 एडमिट्स, और मैंने पीएचडी स्टार्ट की। तो आई थिंक अब नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मैंने जो मिस्टेक की इन चूजिंग अ प्रोग्राम वाज कि मैं 1 या 2 लैब के बेसिस पे मैंने प्रोग्राम चूज कर लिया, कि मुझे लगा कि ये 1 या 2 लैब बहुत अच्छे हैं और मेरे इंटरेस्ट से मैच कर रहे हैं, तो आई शुड जस्ट गो विद इट। और ये था स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। तो आई मूव टू न्यूयॉर्क फ्रॉम हियर, और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया पीएचडी प्रोग्राम। अब वहाँ जाके लैब रोटेशंस होते हैं। यहाँ पे यू हैव टू रोटेट 3 लैब्स, और फिर उसमें से लाइक यू चूज अ लैब एंड देन द पीआई आल्सो हैज टू चूज यू, बिकॉज वो पीआई के पास में भी मल्टीपल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनके पास में भी इतनी फंडिंग नहीं होती कि वो 4-5 बच्चे ले ले, तो उनको भी अपना फेवरेट स्टूडेंट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो कंपटीशन इतना तगड़ा होगा ये मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि ओके, आप पहले तो आप पीएचडी प्रोग्राम में आ गए, बट देन एक बार प्रोग्राम में एंटर होने के बाद में भी इतना कंपटीशन होगा कि तुम्हें आपका फेवरेट लैब के लिए भी तुम्हें compete करना पड़ेगा। तो वंस आई स्टार्टेड द प्रोग्राम, उधर मेरे को जाके पता चला कि जो लैब में मैं इंटरेस्टेड था, वो लैब को फंडिंग ही नहीं मिली जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं गया था उस प्रोग्राम में।
तो उसको फंडिंग ही नहीं मिली बेसिकली। एंड जो जो भी वो प्रोजेक्ट्स करने वाले थे उसमें मुझे उतना ऐसा कि एवरेज टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग ही थे उनके। तो आई थॉट कि ओके चलो देखते हैं। फिर मैंने सेकंड लैब रोटेट किया, वहां पे भी मजा नहीं आया। फिर मैंने थर्ड लैब रोटेट किया एंड देन इट वाज लाइक आई थिंक सभी स्टूडेंट्स ने मेरे बैच में दे हैड ऑलरेडी सिलेक्टेड अ लैब और मैं अकेला ही बच गया था। तो मैंने बोला ओके अब तो जो मिल रहा है मुझे वो लेना ही पड़ेगा, अब तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आई गॉट पिक्ड फॉर ए बायोकेमिस्ट्री लैब जिसमें आई हैड जीरो बैकग्राउंड, मतलब मेरा इट वाज नेवर माय फेवरेट सब्जेक्ट, आई नेवर लाइक्ड बायोकेमिस्ट्री एंड आई थॉट कि अब रहना है प्रोग्राम में तो करना ही पड़ेगा, इट्स ओके। तो आई जॉइंड द लैब एंड यहाँ पे तीन चीजें एक साथ करनी होती है। पीएचडी प्रोग्राम्स आर वेरी वेरी ब्रूटल, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होता है यहाँ पे। So first thing is you have to teach the undergrads. पहला तो एक you get a teaching assistant position जिसमें you teach undergrads a lab course, right? फिर second होता है you yourself have to take courses, और जब तुम courses ले रहे हो उसमें you have to score more than a B से नीचे गए तो तुम फेल हो जाते हो और तुम्हें निकाल देते हैं पीएचडी प्रोग्राम से। एंड इट्स बहुत ऑनेस्ट है, वो निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धमकी देते हैं, सच में निकाल देते हैं। मतलब निकाल देते हैं, सिर्फ निकाल देंगे या फिर मास्टर्स में डाल देंगे, ऐसा कुछ? नहीं, सो इट डिपेंड्स कि तुमने कितने क्रेडिट्स कर लिए हैं, और ओके। अगर तुमने इतने क्रेडिट्स कर लिए हैं इनफ फॉर ए मास्टर्स डिग्री, तो तुम्हें ऑप्शन लाइक डिस्कस करेगी कमिटी इफ यू आर गुड इनफ फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम। अगर उन्हें लगेगा कि तुम्हारे ग्रेड्स नहीं है उतने कि तुम मास्टर्स प्रोग्राम के लायक भी नहीं हो, तो तुम्हें निकाल ही देंगे, यूनिवर्सिटी से ही निकाल देंगे। एंड देन द थर्ड थिंग इज यू हैव टू वर्क इन अ लैब जिसमें तुम्हें यू हैव टू डू रियली गुड जॉब टू इम्प्रेस योर पीआई, एंड यू हैव टू ऑल्सो फाइंड कि तुम्हें इंटरेस्ट है कि नहीं उस लैब में। तो वो तीन चीजें तुम्हें एक साथ में जगल करनी पड़ती है। तो उसमें से आई थिंक मेरा जो टीचिंग वाला जो पार्ट था दैट्स व्हाट आई एंजॉयड द मोस्ट। और रिसर्च में आई वाज डूइंग ओके, आई वाज स्टिल जनरेटिंग डेटा, बट देन आई फेल्ट कि ठीक ठाक तो चल जाएगी गाड़ी, बट देन आई थॉट कि आई गिव माई सेल्फ 6 months एंड आई बी रियली ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। अगर मुझे मजा आ रहा है जेन्युइनली तो ही आई कंटिन्यू, अदरवाइज आई लुक फॉर अदर ऑप्शंस। तो वो 6 months की मैंने डेडलाइन सेट की खुद के लिए कि बायोकेमिस्ट्री लैब में काम करूंगा। मे बी I thought कि maybe I don't know the subject that really well, that's why maybe I'm not liking what I'm doing. तो मैंने again like videos देखना और फिर ऐसे कोर्स को really पढ़ना स्टार्ट किया। एंड देन इवन आफ्टर 6 months आई फेल्ट ओके ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और 5-6 साल तो नहीं हो पाएगा, और 5-6 साल और फिर उसके बाद में पोस्ट डॉक वगैरह के लिए भी मैं लंबा ही सोच रहा था मैं। तो वहां पे आई थॉट कि नहीं होगा, अब तो कुछ और देखना पड़ेगा। तो दैट्स व्हेन आई वेंट टू मैं कॉन्फ्रेंस पे आया हुआ था, वो बर्कली में थी, यूसी बर्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, जो सैन फ्रांसिस्को के पास है। तो मैं फ्लाई करके वहां पे आया था और पोस्टर प्रेजेंटेशन था मेरा। तो मैंने सोचा कि आई रेंट अ कार एंड आई जस्ट गो टॉक टू माय प्रीवियस पीआई जहाँ से मैंने मास्टर्स की इंटर्नशिप की थी, कि जिससे हाय हेलो। और फिर मैं उनसे मिलने गया और फिर मैंने उनको ये स्टोरी बताई कि मुझे नहीं हो रहा है कंटिन्यू करने पीएचडी, एंड आई मे जस्ट लुक फॉर अनदर जॉब क्योंकि मेरे को निकलना है यहाँ से। तो लकीली माय पीआई हैड अ पोजीशन ओपन और उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू अप्लाई एंड कम बैक। तो मैं बफेलो न्यूयॉर्क गया और फिर मैंने फिर से अप्लाई किया इस जॉब के लिए। तो उन्होंने हो गया जॉब। फिर मैंने विद इन 2 weeks कमिटी से बात की कि मुझे निकलना है, एंड दे सेड since you've done all the credits for a master's degree, why don't you write a thesis for us? जितना भी अभी तुमने काम किया है उसके ऊपर एक thesis लिख दो मास्टर्स की, and then we'll give you the master's degree. तो I thought okay सही है, but then वो 2 weeks के अंदर अंदर मुझे thesis लिखना पड़ा फटाफट और फिर get it approved by the committee। फिर वो करके मैं फटाफट फिर यहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट कर दी सैन डिएगो में आके। तो
वो रीजन पीएचडी छोड़ने का वही था कि इंटरेस्ट आई थिंक बहुत जरूरी है. यू नीड टू हैव दैट एक नेचुरल इंटरेस्ट होना चाहिए, वरना पीएचडी में कोई मोटिवेशन बाहर से नहीं आने वाला है. तुम्हें खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहना है पूरे टाइम. मॉनेटरीली तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं आने वाला है क्योंकि स्टाइपेंड मिलेगा. तो तुम्हें अगेन यू हैव टू बी फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड फॉर इट कि 5-6 साल तक कम सैलरी कम स्टाइपेंड में अपना काम चलाना है. एंड देन कि तुम्हें सच में तुम निकाल पाओगे उतना, क्योंकि वो बहुत ही टफ और बहुत ही कंसेप्चुअली हैवी चीज है पीएचडी. तो मुझे उतना लग नहीं रहा था कि मैं डिफेंड कर पाऊंगा मेरा थीसिस या मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री में उतना मेरा हाथ स्ट्रॉन्ग नहीं था. तो दीज वर द रीजंस आई थॉट कि I should look for different options. And it's very important to be genuine, honest with yourself. Don't do a PhD just for the degree, just to do it. Don't do it for that. कोई मोटिवेशन नहीं होने वाला है बाहर का. तो you have to be prepared to keep motivating yourself. And पैसे भी नहीं मिलने वाले. तो think of all these things before you step into a PhD, I would say. तो yeah, यही रीजन था निकलने का. तो I have हाँ. degrees. Yeah. हाँ, I agree. There has to be an internal reason, क्योंकि PhD के जो highs and lows हैं वो externally, even your PI can't help you in most of the cases, because in a lot of things you are the expert and not your PI. So if you don't have that motivation from inside, it becomes really hard to go on. So labs वगैरह की आपने इतनी सारी बात करी है. तो जब आप शिफ्ट किए अपने एकेडमिक लाइफ से, अपने एकेडमिक लैब से, आपने उसके बाद जितना सारा काम किया, उससे अभी रिसेंट 2023 में जब आप नोवार्टिस में गए, तो वह नोवार्टिस के काम में और अपने लैब से काम में कितना सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस लाइक, मतलब एज एन एकेडमिक लाइफ और एक इंडस्ट्री लाइफ में, बोथ एज अ साइंटिस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? The main difference between academia and industry, I would say, would be the pay. Firstly, industry pays you at least 2x of what you make in academia in your early career, at least 2x. And then as you progress, as you become more and more senior, the gap becomes wider and wider. Like the pay gap is it becomes like 3x. Industry pays 3x more than academia. So I feel first difference to wo hota hai. And once you get that pay bump, एक अलग confidence और एक अलग responsibility feel होती है that you are now progressing in your career, which is really really important, क्योंकि लोग बहुत साल academia में रह जाते हैं and they feel कि industry में जाना वो फिर तुम सेल्फिश हो रहे हो, फिर तुम सेल्फिश नहीं, फिर तुम लालची हो रहे हो कि तुम पैसों के पीछे भाग रहे हो. बट जब तुम अर्ली करियर में होते हो, you're still learning how lab works, you're still learning techniques, you're still learning how to generate data, and the money factor doesn't really bother you as much at this stage. But then as you become more experienced, about let's say 4 or 5 years in academia, you reach a point where money becomes extremely important. And especially when you want to get married, when you want to start a family, money becomes really important. Parents start to ask, you want to be able to provide to them, you want to be able to help your family also come up. So वहाँ पे पैसा बहुत important हो जाता है. So I feel main difference तो ये हो गया. Second, I would say you work many hours in academia versus in industry, due to the nature of academia, right? Where your lab needs to have meaningful publications, and that's how the cycle works. If you don't get publications, you won't receive funding. If there's no funding, you won't get your salary. So there's always that pressure to publish, right? As they say, you either publish or perish, right? You have to keep generating data. So wo jo pressure hai to publish, so that makes you work many more hours in academia. So there's no 9 to 5. There's like
9 to 9 sometimes. जब तुम later stage पे हो, जब एक publication आने ही वाली है, तब तो your workload increases a lot. तो I feel कि work hours are more defined in industry than in academia. फिर I feel कि academia में you are required to wear many hats, right? Like you have to multitask, you have to do a lot of things. So मैं like I used to lead a couple of projects. So like basically doing science. Then I was the lab manager. So I have to take care, of all the lab personnel, of all the inventory, कुछ order करना है. वो सब मेरे पास ही आते थे, मुझे ही order करना है. Then third thing is I was also the safety area coordinator. So उसमें I have to make sure the lab is in compliance. सब लोग ने lab coat पहना है, सब लोग ने gloves पहने हैं, safety goggles पहने हैं, वो सब भी responsibility मेरी थी. So I was basically doing 3 jobs for one person. So ये मैंने difference देखा कि industry में my role is more defined, and I was hired to be a scientist, and that's what's expected of me. उससे ज़्यादा लैब मैनेजर ड्यूटीज के लिए, सेफ्टी के लिए, ये सब चीज़ों के लिए दे हैव पीपल. सो वो सब, उसके लिए मुझे वरी करने की ज़रूरत नहीं है उतनी. सो ये आई थिंक टॉप ऑफ द माइंड, आई थिंक ये 3 मेजर डिफरेंसेस मुझे फील हुए व्हेन आई ट्रांजिशन टू इंडस्ट्री. And like everything in life, nothing is all good or bad. दोनों sides है, everything is good and bad. So industry के भी अपने अपने challenges हैं. When you're working in a large biotech like Novartis, you do get a good pay package, and company is very resourceful. But then sometimes, like approvals for experiments, approvals for, let's say, you need to get a green signal for a project. Sometimes क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें इतने सारे लोग, इतने सारे टीम्स हैं, तो अप्रूवल्स और ग्रीन सिग्नल्स आने में बहुत टाइम लग जाता है. तो यू नीड टू बी पेशेंट. कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें 3-4 हफ्ते तक भी प्रोजेक्ट आ नहीं रहा है, और जो भी प्रोजेक्ट आने वाला था हाथ में, वो फॉर सम रीजन इट गॉट कैंसल्ड और इट गॉट लाइक बैक बर्नर्ड. सो लाइक उसकी इतनी अभी इंपॉर्टेंस फील नहीं हो रही लीडरशिप को. तो यू नीड टू हैव दैट पेशेंस कि इट्स ओके. समटाइम्स थोड़ा स्लो रहेगा और समटाइम्स बहुत फास्ट रहेगा. समटाइम्स डेडलाइंस, यू हैव टू मीट द डेडलाइंस. तो उसमें तुम्हें फटाफट यू हैव टू बी अप टू द स्पीड कि तुम्हें अब डेटा भी जनरेट करके देना होगा फटाफट. एंड देन आई फील की स्टेबिलिटी आती है. इंडस्ट्री डज ऑफर यू स्टेबिलिटी, बट देन विद स्टेबिलिटी पॉलिटिक्स भी आता है, राइट? ये तो हर जगह ही है. तो and this is where this is what I was talking about when I said about soft skills. This is where it becomes really important. कि कंपनी के पॉलिटिक्स के थ्रू मनूवर करना, ये सब तुम्हें सीखना ही पड़ेगा. इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि तुम अच्छे बन के रह जाओ और फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. बेसिकली वही है, सिंपल सा फंडा है. तो ये चीज़ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आती है और ये तुम्हें आना चाहिए कैसे इसमें आगे बढ़ना है. फिर I would say कि since it's such a big engine, like एक large biotech is such a big engine कि इसमें इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें visibility takes time. Like तुम एक employee हो, but then to be able to be visible to the senior leadership कि तुम्हारा कोई नाम जाने, तुम्हारा कोई work जाने, उसमें time लगता है. क्योंकि तुम जब डेटा जनरेट कर रहे हो, पहले तो तुम्हारा मैनेजर तक ही रहती है बात. फिर बाद में यू लर्न हाउ टू रियली come up with ideas, how to really like as you become more and more senior, you try to learn how to design experiments by yourself, and जब तुम और ज़्यादा सीनियर होने लग जाते हो, तब तुम्हें फिर यू स्टार्ट प्रेजेंटिंग टू टीम्स, डिफरेंट टीम्स, नॉट जस्ट योर टीम. वहाँ पे जाके तुम्हें धीरे धीरे विजिबिलिटी मिलती है. तो
इसमें टाइम लगता है, सो दैट्स व्हाई लाइक ग्रोथ टेक्स टाइम, बेसिकली प्रमोशन टेक्स टाइम इन इंडस्ट्री। बट इन एकेडेमिया, क्योंकि तुम डायरेक्ट पीआई के साथ में काम कर रहे हो, पीआई नोस एग्जैक्टली हाउ मच यू आर डूइंग, और एक लैब में 5 10 15 लोगों से ज्यादा उतनी बड़ी लैब्स होती नहीं है एकेडेमिया में, तो उसमें विजिबिलिटी इज ईजियर, बट इंडस्ट्री में वो चैलेंजिंग है। एंड देन एंड यू आई नो, फील लाइक इट्स आल्सो योर नीश, राइट? कि आपको अगर हायर किया हुआ तो एक स्पेसिफिक फील्ड में, स्पेसिफिक एरिया में काम करने दिया जाएगा, तो वहाँ पे आसान होता है दैट यू आर दैट गाय। राइट, एग्जैक्टली। तो लाइक तुम्हें, लाइक इवन इन इंडस्ट्री, लाइक यू आर हायर्ड फॉर यू नो सम स्पेशलाइजेशन। लेट्स से मेरा एक्सपीरियंस था जीन थेरेपी में, और मुझे जीन थेरेपी प्रोजेक्ट्स के लिए ही हायर किया गया। बट देन देर आर सो मेनी पीपल दैट आई वर्क विथ, उसमें ऊपर दिखना और इम्प्रेस करना सीनियर लेवल लीडरशिप को, वो चैलेंजिंग रहता है। वो आई फील कि वो अपन ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि इंडस्ट्री में गए तो फिर तो ग्रोथ तो होनी ही है, बट इट्स एक्चुअली अ मिथ, इट टेक्स टाइम। एंड फिर यू नो एकेडेमिया, पीआई के पास में एक इंटेलेक्चुअल यू नो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लाइक लेट्स से दे फाइंड as they go along they find some interesting questions in research and they feel कि अच्छा ये वाला डायरेक्शन में चलते हैं। बट इंडस्ट्री में वो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से सब फिक्स्ड हो जाता है कि यही होगा, इसका पैसा है अपने पास, यही करना है अपन को, तो वो एक है। बट देन दैट डजंट बॉदर मी अ लॉट, इट्स ओके। मीन या मेरा उतना वैसा पीआई जैसा माइंड है नहीं कि मुझे चाहिए कि मैं अपने क्वेश्चंस भी आंसर करूँ, उतनी क्यूरियोसिटी नहीं है। तो इट वर्क्स आउट वेल फॉर मी। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि आप अपने इवेंचुअली मास्टर्स के बाद थोड़ा कुछ रिसर्च क्लास में काम करके फिर इंडस्ट्री में स्विच कर गए थे, तो अगर किसी को सिमिलरली एकेडमी से इंडस्ट्री में स्विच करना है, तो उसे किन किन चीज़ों की उनको ध्यान में रखना पड़ेगा? कुछ फॉर एग्जांपल लाइक से हायरिंग मैनेजर्स क्या-क्या देखते हैं इन सब चीज़ों में जब भी वो सेलेक्ट करते हैं किसी को नॉट फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बट फ्रॉम एकेडेमिया टू इंडस्ट्री, किसी को नया स्विच करवाना है, तो कैसे अगर किसी को खुद को एक उस पोजीशन में लेके जाना है कि वो डिजायरेबल बने इंडस्ट्री की तरफ, तो वो आपने कैसे किया था, आपने ये स्विच किया? सो आई फील कि इन एकेडेमिया यू नो अपन को ये लगता है कि रेज्यूमे जो अपन सीवी बनाते हैं बेसिकली एकेडेमिया में, वी फील कि जो भी हमने किया है सब कुछ उसमें डाल दिया जाए ताकि ऐसा लगे कि मैंने बहुत काम किया है, राइट? अपने अपनी वो मेंटालिटी होती है कि वॉट एवर वी हैव डन, इंटर्नशिप्स और इररेलेवेंट एक्सपीरियंसेस सब भर देते हैं अपन उसमें, और वो 3 4 पेजेस का हो जाता है अननेसेसरीली, और वो भी मास्टर्स या ऐसे 2 years जॉब एक्सपीरियंस के लेवल पे 4 4 पेज का सीवी डजंट मेक एनी सेंस। आई फील कि इंडस्ट्री के लिए ए रेज्यूमे वर्क्स बेटर, और रेज्यूमे शुड बी टाइट। लाइक लेट्स से इफ यू हैव अ पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस या पोस्ट डॉक के बाद भी बहुत एक्सपीरियंस है तो मैक्स 2 पेजेस तक जाना चाहिए, अदरवाइज 1 page इज वेल एंड इनफ। टाइट रेज्यूमे होना चाहिए, और उसमें विथ एकेडेमिया ट्रेनिंग अपना ऐसा रहता है कि वो आई जस्ट लिस्ट ऑल द वर्क, ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है। But with industry resume, the way that you want to position yourself is to show the recruiter that आपका ये job description है and this is where I fit, like this is what I do। मैंने ये question को ऐसे answer किया, और वो बहुत ही succinct और बहुत ही प्रिसाइज सेंटेंसेस में लिखा होता है, वो ये नहीं कि बहुत लंबा लंबा तुम पढ़ने के लिए दे रहे हो रिक्रूटर को। And I feel क्योंकि resume is a very very important step of you know of your job application, and that's the only thing that you know that the recruiter sees before calling you for an interview। तो उसका जो 1/3 टॉप जो 1/3 पोर्शन है, I feel you want to make it as attractive as you can, और उसमें वो फ्लफ वगैरह निकाल दो, फालतू के जो अपन सॉफ्ट स्किल्स भी लिख देते हैं उसमें कि आई एम अ टीम वर्कर, आई एम यू नो डिलिजेंट, आई एम हार्ड वर्किंग एंड ऑल ऑफ दैट। इट जस्ट डजंट मीन एनीथिंग फॉर अ रिक्रूटर। कुछ फायदा नहीं है वो, तुम्हें वो सब तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि दिस इज व्हाट आई डिड
तो उससे रिक्रूटर समझेगा कि हाँ ये बंदा हार्ड वर्किंग है या टीम वर्कर है, क्योंकि इसने टीम के साथ काम किया है। तो तुम्हें वो प्रूफ दिखाना है, वो इनडायरेक्टली तुम्हें बोलना है, डायरेक्टली नहीं बोलना है सॉफ्ट स्किल्स अपने। तो और टेक्निक्स जो है, डोंट जस्ट लिस्ट द टेक्निक्स भी वो डालो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो रेलेवेंट है। डोंट जस्ट पुट एवरीथिंग दैट यू हैव डन। उतना उतना स्पेस यूज करने की जरूरत नहीं है रेज्यूमे में। और आई फील कि द टॉप 1/3 पोर्शन शुड बी द बेस्ट पोर्शन ऑफ योर रेज्यूमे, और उसमें चाहिए तो एजुकेशन बाद में भी डाल सकते हो एंड में। देयर इज नो फिक्स फॉर्मेट कि पहले तुम्हें प्रोफेशनल स्टेटमेंट ही डालना पड़ेगा या तुम्हें पहले एजुकेशन ही डालना पड़ेगा। पुट वॉट एवर इज द मोस्ट आपका जो हाईएस्ट यूएसपी है, आपका जो हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट है, वही ऊपर ऊपर डाल दो। और फॉर्मेट में यू कैन प्ले अराउंड, इट्स ओके, ऊपर नीचे कर सकते हो आप हेडिंग्स। तो आई फील कि रेज्यूमे पे काम करना बहुत जरूरी है, और उसमें जो अप्रोच और एटीट्यूड है वो चेंज करना जरूरी है। वो एकेडेमिया वाला माइंडसेट है जो बस यही बोलता है कि एक एक लेबर वाली एक फीलिंग है कि मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, बस आप काम दो, मैं ये भी कर दूंगा, ऐसे करके अपन हुँ, सीवी बनाते हैं एकेडेमिया में। तो वैसा वाला मेंटेलिटी हटा के, और बहुत ही बहुत सारे आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं रिसोर्सेज कि कैसे इंडस्ट्री रेज्यूमे शुड लुक लाइक, वैसा प्रिसाइज नो फ्लफ वाला एक रेज्यूमे रेडी करो पहले तो। एंड देन सेकेंड थिंग इज ये मैंने इंडिया में सीखा था कि इन इंडिया बिकॉज द कंपटीशन इज सो हाई, वी फील कि द मोर एप्लीकेशंस वी डू उतने ही ज्यादा चांसेस है तुम्हें जॉब मिलने के, बिकॉज इट्स अ नंबर्स गेम, राइट? आप अगर 100 एप्लीकेशंस करोगे तो तुम्हें मे बी 5 इंटरव्यूज आएंगे, एक क्रैक होगा। बट देन स्लोली आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली यू शुड डू मोर टारगेटेड एप्लीकेशंस, कि तुम्हें अगर तुम 10 ही एप्लीकेशन करो चाहे, बट वो ऐसे होने चाहिए जो जेन्युइनली तुम्हारे इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, तुम्हारे एक्सपीरियंस से मैच कर रहा है। क्योंकि ये नहीं होगा कि मेरा जीन थेरेपी का बैकग्राउंड है और मुझे बायोकेमिस्ट्री जॉब में इंटरेस्ट है, तुम्हें नहीं मिलने वाला वो जॉब। तो तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो शुड मैच विद द जॉब डिस्क्रिप्शन, कि हाँ इसी फील्ड का ये जॉब है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और बहुत ही टारगेटेड अप्रोच कि अच्छा ये वाले 10 पोजिशन। सो फॉर दैट आई यूजुअली टेल स्टूडेंट्स कि इवन व्हेन यू आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब्स, राइट, लेट्स से आप अभी कॉलेज में ही हो, आप अभी यूनिवर्सिटी में ही हो, कीप लुकिंग एट द जॉब पोस्टिंग्स दैट कम आउट, राइट, कीप रीडिंग देम। ऐसे ही 5-10 मिनट मिला, जस्ट कीप रीडिंग देम इवन इफ यू डोंट वांट टू अप्लाई। सो जब आप बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ लेते हो, 20 या 30 पढ़ लिए, यू विल स्टार्ट टू सी अ पैटर्न। एक कॉमन पैटर्न रहता है कि हर एक कंपनी ये टेक्निक्स चाहती है, और मोटा मोटी ये चाहिए वो लोगों को। वो एक एक रिपीट होने लग जाता है वो एक फॉर्मेट। तो दैट्स व्हेन यू कैन डिसाइड कि व्हाइल आई एम इन माय यूनिवर्सिटी और व्हाइल आई एम इन स्कूल, क्या मैं टेक्निक्स लर्न कर सकता हूँ। और लर्न करना मतलब you don't have to be very proficient in it. Even if you understand the concept, even if you've seen someone doing it once or twice, or you've done it once or twice, you can still include that in your resume. You should just know enough about it so that you are able to defend. Let's say अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन उठा तो तुम जवाब दे पाओगे कि तुम्हें ये आता है करना। और सेकेंड चीज है कि कीप रीडिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस। जब तुम्हें आइडिया आ हुँ, जाएगा कि व्हाट्स रिक्वायर्ड ऑफ यू, व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू, तो तुम रियलिस्टिकली बेटर रेज्यूमे बना पाओगे और रियलिस्टिकली बेटर प्रिपेयर हो पाओगे, क्योंकि तुम स्टिल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो और वहां पे तुम्हें यू स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर थिंग्स। तो क्योंकि लोग ये गलती करते हैं कि जब वो जॉब ढूंढना चाहते हैं तब वो लोग स्टार्ट करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ना। आई से हुँ, स्टार्ट 6 months इन एडवांस, जस्ट रीड, कुछ तुम्हें उसका करना नहीं है, खाली समझ लो वो पैटर्न। एंड देन हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं हिडन। वन होगा एक मिनिमम क्वालिफिकेशंस, दैट इज अ नॉन नेगोशिएबल। तो तुम्हें अगर लिखा है कि दिस पर्सन नीड्स टू हैव अ बीटेक इन बायोटेक एंड इन लेट्स से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो वो नॉन नेगोशिएबल है, वो तुम्हारा होना ही चाहिए वो वाला पार्ट।
तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस यू शुड ऑलवेज सी कि यू मीट दोस क्वालिफिकेशंस। सेकेंड होगा प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस वाला सेक्शन, जहाँ पे दे प्रिफर समवन जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन तो है, बट देन दे आल्सो हैव दिस, लाइक इफ दे हैव दिस देन इट्स अ प्लस। सो वो अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें उसको ऊपर ऊपर अपने रेज्यूमे में डिस्प्ले करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो दैट्स व्हाट आई हैव सीन, लाइक सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस एटलीस्ट यूएस में जो बायोटेक में है वो ऐसे ही आते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशंस, डिजायर्ड प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस। तो उसमें जो प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन वाले जो बंदे होते हैं वो लोग मोस्टली दे गेट शॉर्ट लिस्टेड, कि उनके पास में वो स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है व्हाट द कंपनी वांट्स। तो एज है उनके पास। राइट, राइट। हम्म, कभी कभी ऐसे एकदम स्पेसिफिक होगा कि जिनोमिक्स में एक्सपीरियंस चाहिए या ऐसे नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग में एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो एग्जैक्ट स्पेसिफिक टेक्निक का एक्सपीरियंस है तो दे गेट ग्रीन फ्लैग्ड। तो आई फील कि वो एक बार आइडिया लग जाता है ना कि प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में भी कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो व्हाई डोंट आई ट्राई टू लर्न इट व्हाइल आई एम इन स्कूल। एंड तो ये चीज से आई फील कि इंडस्ट्री रेडीनेस आती है। एंड देन साथ में छोटी छोटी चीजें हैं दैट यू कैन ऑलरेडी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, समथिंग एज सिंपल एज राइटिंग गुड प्रोफेशनल ईमेल्स। राइट, इंडस्ट्री में बहुत ईमेल्स लिखने पड़ते हैं, तो तुम्हें अगर अगर तुम्हें अच्छे ईमेल्स लिखने नहीं आता जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और प्रिसाइज है, फ्लफ नहीं है, बकवास नहीं लिखी है, लंबे लंबे नहीं लिखे हैं, तो वो लाइक आई फील एक गुड ईमेल कैन सेव यू समटाइम्स जैसे मंथ्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर तुम अच्छे से कम्युनिकेट करना जानते हो तो वो उसकी एक हैबिट है, वो तुम अगर कॉलेज स्कूल में ही डाल दोगे तो वो बाद में इंडस्ट्री में यू डोंट हैव टू लर्न इट अलग से। राइट, तो आई फील ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काम आती हैं। हम्म, और या आई थिंक हम्म। बस नहीं है। मैंने भी ये काफी नोटिस किया है, एटलीस्ट मतलब हम्म, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बैचलर्स कर रहे हैं अभी, उनकी मेन चीज उनके ईमेल्स में काफी डिफरेंस होता है कंपेयर टू जो प्रोफेशनल्स हैं उस इंडस्ट्री में, या फिर जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। थोड़ा उनके प्रोफेशनल्स के ईमेल थोड़े ज्यादा स्मूथ होते हैं, थोड़े ज्यादा पोलाइट होते हैं, थोड़े ज्यादा स्मूथ फ्लोइंग होते हैं बेसिकली, आई हम्म, गेस। Whereas स्टूडेंट्स के जो एकदम स्टार्टिंग के थोड़े से रफ ईमेल्स रहेंगे, उनके वर्ड्स, उनके ग्रामर थोड़ी सी अलग होगी, कई बार गलत होती है, स्पेलिंग्स, फुल स्टॉप, छोटी मोटी चीजें जो कि रेड फ्लैग्स नहीं है, बट यू लुक एट देम यू गो ओह, सॉर्ट ऑफ वो सब चीजें। सो राइट, या या एब्सोल्युटली। एंड देन और अभी तो एआई चैट जीपीटी वगैरह यूज करके आप कर सकते हो परफेक्ट सब कुछ, तो फिर व्हाई नॉट जस्ट यूज इट। राइट। yeah, but there's like, I feel like there's a line between using AI, because like you got people who use AI smartly, but then you got people who just copy and paste, and it's so obvious. For example, like those dash things, you can see, and there are specific languages. So like मैं जैसे कुछ भी email देखता हूँ, I look at it and be like, yes, AI है, which is not bad, but like someone else shouldn't be like this, I feel like. So राइट, as long as you give it your own touch, राइट, राइट। आई थिंक इट yeah. शुड बी यूज्ड टू लाइक पॉलिश इट बेसिकली। पहले Hmm. अपना अपना फॉर्मेट में लिख दो सब कुछ, एंड देन जस्ट टू लाइक पॉलिश एंड रिफाइन योर सेंटेंसेस और ग्रामर में भी, बस उसके लिए यूज कर Yeah. सकते फॉर Hmm. श्योर। और स्पीकिंग ऑफ स्किल्स की, आपने अभी स्किल्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, तो काफी बच्चों का क्या सवाल रहता है कि बायो इन्फो कितना काम है, जैसे आपकी प्रॉपर हार्डकोर आपका मोलिकुलर बायोलॉजी, जीन थेरेपी वाला काम है, इवन उस फील्ड में बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला का कितना यूज होता है, अगर कुछ होता है तो कुछ? आई वुड से मेरे केस में इट्स 95% वेट लैब वर्क और 5% बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बट उसकी नॉलेज होना जरूरी है। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लाइक बेसिक ब्लास्ट करना, बेसिक सीक्वेंस अलाइनमेंट करना, ये सब आई फील यू शुड नो, उतना तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है। बिकॉज लाइक लेट्स से यू नो ट्रांसफॉर्मेशन करना है या कुछ भी तुम्हें सीक्वेंसिंग के लिए भेजना है, तुम्हें डेटा आएगा, तो यू शुड नो हाउ टू मेक श्योर कि करेक्ट प्लाज्मिड है, करेक्ट कंस्ट्रक्ट के साथ तुम काम कर रहे हो। तो आई फील कि उतने लेवल तक तो तुम्हें आना जरूरी है कि यू नो द बेसिक्स ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बस उससे ज्यादा वेट लैब रिसर्चर को उतना नहीं काम पड़ता है।
और बाकी जो भी बच गया है वो तुम यू कैन लर्न दैट ऑन द जॉब एज यू गो। और आजकल तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी आ गए हैं, और बहुत सारी गाइडेंस आ गई ऑनलाइन, तो तुम पूछ पूछ के वैसे भी लर्न कर सकते हो। बट आई फील बेसिक्स आर डेफिनेटली नीडेड, और वो अम, तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा भी नहीं होगा, बट वो तुम्हें यूज होगा। तो इट्स एक्सपेक्टेड होता है। यस यस, इट्स हुँ, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड कि ये तो तुम्हें आना ही चाहिए ब्लास्ट वगैरह करना। तो बट हुँ, देन नहीं आता है कुछ लोगों को, कुछ आई हैव आल्सो सीन पीएचडीज जिनको नहीं आता है, बट देन दे फिगर थिंग्स आउट। आजकल तो हो जाता है, कैसे भी तुम फिगर तो कर ही लोगे, क्वेश्चन का आंसर निकालना है, फिर सीख जाते हो अपने आप। बट हुँ। इट्स गुड कि अगर तुम्हें आता है तो इट डेफिनेटली गिव्स यू अपर हैंड। अभी थोड़ा एक अपने आपका फ़ील्ड जो है, जो कि जीन थेरेपी है, इस सब के ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? थोड़ा हेल्थ केयर एसोसिएटेड है थोड़ा काम काफ़ी सारा। हम्म इनफैक्ट लाइक हमारे उसमें मैं जिस टीम में हूँ हम्म आईजीएम टीम में हमारी, हम उसपे हम्म थोड़ा जीन थेरेपी वाला काम कर रहे हैं, हम ड्राइवर सिंड्रोम में काम कर रहे हैं। तो हम्म आपको क्या लगता है कि जीन थेरेपी वाली साइड में अगर किसी को शुरू करना है, कोई इंटरेस्टेड है अगर हम्म आपके फ़ील्ड में, तो उसको किस डायरेक्शन में उसको किस तरीके से क्या-क्या किन चीज़ों में उसको लुक फॉरवर्ड करना होगा कि हाँ, मैं लेट्स से मैं इंडस्ट्री साइड में जा सकता हूँ। मुझे इंडस्ट्री नहीं पसंद है, मुझे एकेडेमिया में रहना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? मतलब कुछ है भी या फिर नहीं है? ये ज़्यादा इंडस्ट्री फ़ोकस्ड फ़ील्ड है या फिर ज़्यादा एकेडमिया फ़ोकस्ड फ़ील्ड है? क्योंकि ज़्यादातर जितने भी बड़े जीन थेरेपी सुनते हैं, वो सारे के सारे सुनने में आता है कि वो सारे के सारे इंडस्ट्री साइड से आ रहे हैं। तो किसी को इंडस्ट्री में ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए या फिर एकेडमिया में? हम्म या फिर कुछ मिडल ग्राउंड है इन सब के बीच में? हम्म See, like what excites me about this field is that, so if I simplify it, I feel कि जो traditional medicine है, they they treat symptoms, and gene and cell therapy they fix the root cause, right? So ये चीज मुझे बहुत interesting लगी थी कि okay, दवाइयाँ खाली तुम्हारा सिम्टम्स पेन वगैरह कम कर देगी, जीन थेरेपी तुम्हें रूट कॉज से, तुम्हें जेनेटिक्स से तुम्हें ट्रीट कर रही है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन सीइंग एंड एक्सपीरियंसिंग, और इसमें मैंने इसी में मैंने अभी काफी काम कर लिया है, तो मुझे अब कॉन्फिडेंस है कि या दिस इज द फ्यूचर। और सच में वी आर मूविंग टूवर्ड्स वन टाइम ट्रीटमेंट्स इंस्टेड ऑफ लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस। वी आर मूविंग टूवर्ड्स पर्सनलाइज्ड थेरेपीज, जहाँ पे अम, सबका सबकी कस्टम मेडिसिन बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक मेडिसिन सबको काम आ रही है। और फिर रेयर जेनेटिक डिजीजेस पे बहुत सारे पोटेंशियल क्योर्स आते जा रहे हैं। तो आई फील इट्स स्टिल अर्ली, देयर आर चैलेंजेस, कॉस्ट, स्केलेबिलिटी, सेफ्टी वगैरह, देयर आर स्टिल चैलेंजेस, बट द डायरेक्शन इज क्लियर। आई फील जीन थेरेपी फील्ड उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इट विल बी वेरी वेरी कॉमन कि किसी की जेनेटिक बीमारी बचपन में ही डायग्नोज होगी, एंड देन देयर इज ए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो ये चीज बहुत ही लाइक वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम मैनेजिंग डिजीज टू क्योरिंग इट। सो आई फील दैट्स हुँ। व्हाट यू नो is making the field more and more exciting day by day, and I still get amazed जैसे जैसे projects आगे आगे बढ़ते हैं। आज भी मैं देख के like ऐसे I work in vivo experiments, so मेरा mouse work बहुत ज़्यादा है, तो I see the effect of therapies, I see the direct implications of the drug that Novartis develops, मैं first hand देख पाता हूँ, and I feel कि सच में this is where we are headed। And इसके लिए see, like when you're working in academia, like the way that you should choose your academia lab is you should see अगर जो रिसर्च उसमें हो रही है क्या उसका मार्केट प्लेस में कितना इम्पोर्टेंस है। यू डोंट वांट टू बी स्टक इन अ लैब जो किसी डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे पे काम कर रहा है बैक्टीरिया में, जिसका मे बी डाउन द लाइन जाके कैंसर में कुछ होने वाला है। आई फील कि चूज अ लैब जो थोड़ा डायरेक्ट क्लिनिकल बेड साइड जिसका इम्प्लीकेशन आएगा, एंड
वो तुम्हें मोटिवेटेड भी रखेगा जब तुम खुद देखते हो एक डेटा सेट देखते हो कि अच्छा ये मैंने किया और इसका डायरेक्ट इसका कुछ ड्रग बन रहा है या फॉर्मुलेशन बन रहा है। तो आई फील कि वो वैसा रिसर्च टॉपिक चूज करना जरूरी है। एंड व्हेन यू चूज एन एकेडमिया लैब, उसमें don't be stuck in a lab जो सिर्फ पब्लिकेशन के लिए, like you know, because there are labs जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ पब्लिकेशन फैक्ट्री होते हैं। वो प्रोजेक्ट्स really they don't have a good scope in future, but then they are just kept just for, you know, keeping the publication engine going. तो ऐसे labs like try to avoid, ट्राई टू चूज लैब्स जिसमें तुम्हें रियली जो रिसर्च क्वेश्चन पूछा गया है उसका मार्केट प्लेस में वैल्यू है, मॉनिटरीली आगे जाके वो पैसा कमाएगी, वो थेरेपी में भी पेटेंट हो जाएगा या कुछ तुम नया नया इन्वेंशन कर दोगे, ऐसा कुछ सोचो। एंड देन फॉर दैट, लाइक इफ यू हैव दैट क्लियर कि मुझे कुछ ट्रांसलेशनल साइड में काम करना है, कि कुछ भी जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है, बस दैट्स ऑल यू शुड वरी अबाउट। उसके बाद में इट डजेंट मैटर इफ यू आर वर्किंग इन एकेडमिया और इंडस्ट्री, दोनों में अगर वैसा ही काम हो रहा है। और एकेडमिया से इट हेल्प्स यू बिल्ड योर प्रोफाइल एज अ साइंटिस्ट, राइट? लाइक वहाँ पे तुम रियली हार्डकोर साइंस और रियली तुम सीखते हो कैसे रियल डेटा जनरेट होता है, कैसे पब्लिकेशन की तरफ जाते हो। तो वो जर्नी से भी गुजरना बहुत ज़रूरी है आई फील। उसके बाद में इफ यू गो टू इंडस्ट्री, यू आर बेटर प्लेस्ड एंड यू नो बेटर देन मेनी पीपल जो डायरेक्टली इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं। So I feel it's very important to go through the academia cycle, but then limit yourself कि अच्छा मैं 4 साल 5 साल या मैक्स से यहाँ तक मैं अपने आप को ट्रेन करूँगा, एंड व्हेन आई फील कि आई एम नाउ फुली ट्रेन्ड एंड आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, दैट्स व्हेन इट्स टाइम टू जंप टू इंडस्ट्री। बट देन अगर तुम्हारा रिसर्च टॉपिक ये रहेगा ट्रांसलेशनल साइंस और ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी की तरफ तुम्हारा फोकस है, तो फिर यू डोंट वरी अबाउट एकेडमिया या इंडस्ट्री, इट डजेंट मैटर। तुम्हें हेल्प ही हो रही है करियर में, किसी में भी रहो तो। हाँ, काफ़ी एक्साइटिंग फ़ील्ड है जीन थेरेपी, मुझे लगता है। काफ़ी सारे न्यूज़ वग़ैरह देखता हूँ, काफ़ी कंपनीज़ हैं जो अभी और जाके अपना वो कर रही हैं, जीन थेरेपी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कर रही हैं, एएवीज़ में ज़्यादा फ़ोकस कर रही हैं, इन सर्च में। तो काफ़ी एक्साइटिंग फ़ील्ड है ये, तो होपफुली लेट्स सी काफ़ी आगे जाए ये फ़ील्ड और नई थेरेपीज़ हमारे पास आएँ। 100%, मतलब मैंने हाँ। ऐसे माउस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जिसमें इफेक्ट्स 6 मंथ्स के बाद में देखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें यू स्टार्ट टू टेक यू नो उनके बॉडी वेट से लेकर उनका ब्लड प्रोफाइल चेंज होता है, फिर उनका इवन फर कलर चेंज होता है, उनका एक्टिविटी लेवल चेंज होता है, लेथार्जिक स्लगिश से दे बिकम मोर एक्टिव, एंड यू कैन एक्चुअली सी कि ये थेरेपी कैसे वर्क कर रही है तुम्हारी। तो वो जो है विजुअल, वो तुम्हें मोटिवेटेड रखता है आई फील। एंड जो साइंस फील्ड है वो टफ है, तो यू नीड टू फाइंड मोटिवेशन इन सब चीज़ों में भी। हुँ। कि सैलरी तो है ही, अच्छा पैसा मिलेगा तो यू फील मोटिवेटेड, बट देन साथ में अगर कुछ एक्साइटिंग भी कर रहे हो तो फिर डबल खुशी तो। Must be quite exciting to see your work actually changing something. यस Yeah. एग्जैक्टली। फाइनल क्वेश्चंस ऐसे बिकॉज़ देयर आर टू। मैं नोटिस किया कि आप काफ़ी ज़्यादा लिंक्डइन में पोस्ट करते हो, हेल्प करते हो सबको थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स देते हो चीज़ों के बारे में, ये कैसे इंडस्ट्री में करना है, सीवीज़ वगैरह के बारे में, चीज़ों के बारे में। तो आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया है जब से आपने लिंक्डइन में पोस्ट करना शुरू किया वर्सेस उससे पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस थे? आपकी वर्क लाइफ में आपके कनेक्शंस वगैरह में कुछ फ़ायदा हुआ उस वजह से, या फिर क्या लिंक्डइन में पोस्ट करने से, कोई रेगुलर पोस्ट करने से क्या आपको इफ़ेक्ट पड़ा? 100%, मतलब बहुत बहुत कुछ चेंज हुआ। आई फील कि फर्स्ट आई यूज्ड टू ट्रीट लिंक्डइन लाइक अ डिजिटल रेज़्यूमे, बेसिकली जो किया है वो डाल दो, एक्सपीरियंस ये बस हो गया। एंड देन आई यूज्ड टू गो एंड कनेक्ट विद पीपल, लाइक खुद
मैसेज करूँगा बट देन कुछ रिप्लाई नहीं आएगा, तो बस खाली मैं कनेक्शंस ऐड करता था। इट वाज़ लाइक फेसबुक कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस होंगे तो अच्छा है। बट देन आई as I started posting more often, I felt कि लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं जब आप जेन्युइनली आपके एक्सपीरियंस के बारे में व्हेन यू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, जिसमें you're not using internet cliche language, जो इंटरनेट पे जो जनरल सा ज्ञान है, जेनेरिक सा, वो तुम अगर नहीं दे रहे हो, तुम रियल मिस्टेक्स और रियल लर्निंग्स के बारे में बात कर रहे हो, तो पीपल रिलेट टू दैट एंड पीपल एक्चुअली लर्न थ्रू इट एंड पीपल वांट टू कनेक्ट विथ यू। उसमें तुम यू डोंट थिंक अबाउट कि मुझे इसमें क्या मिलने वाला है, यू जस्ट गिव बेसिकली कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में जेन्युइनली बात करना ये बहुत कम लोग करते हैं। इट इवन दो इट साउंड्स कि ये तो सभी करते हैं, बट ऐसा नहीं है। लिंक्डइन वगैरह पे हर कोई नहीं करता है। तो आई फील कि वो रिलेटेबिलिटी डेवलप हो गई व्हेन पीपल स्टार्टेड टू सी कि अच्छा ओ ही इज टॉकिंग अबाउट कितना कम सैलरी मिलता था मास्टर्स के बाद में, बिकॉज आई पुट माय फर्स्ट ऑफर लेटर ऑन लिंक्डइन। तो पीपल कनेक्टेड कि हाँ यार, मतलब और भी लोगों को इतनी कम सैलरी मिलती है, और सैन डिएगो जैसी इतनी एक्सपेंसिव जगह में भी इतनी कम सैलरी में इसने सर्वाइव किया एंड देन उसने दूसरा जॉब ढूंढा। तो जो पिवट्स हैं करियर के, वो भी जब तुम पोस्ट करते हो तो पीपल थिंक कि अरे सही है, मतलब मैं भी इसी सिचुएशन में हूँ, इसका हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। तो आई फील कि पीपल स्टार्ट recognizing your work also. They go through your LinkedIn profile. उसमें तुमने जो जो काम किया है फिर वो भी देखते हैं कि अच्छा ये भी कुछ फील्ड है, ऐसा भी कुछ काम हो रहा है। एंड वहाँ से जब कनेक्शंस फैलते हैं, जैसे अभी एक जन से मैं कनेक्ट हुआ, उसके और 10 कनेक्शंस हैं, तो इस बंदे ने अगर कुछ एंगेज किया है मेरे पोस्ट पे तो और वो 10 लोग देख रहे हैं, फिर वो और 10 लोगों में से 2-3 लोग मेरा प्रोफाइल देखते हैं, तो ऐसे स्प्रेड हुआ। तो आई फील कि इन 3 मंथ्स टाइम मेरे कुछ 15-20 हज़ार बढ़ गए फॉलोअर्स, जस्ट बिकॉज मैं वीक में 3 बार पोस्ट कर रहा था। तो आई फील कि वो बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू बी जेन्युइन एंड वेरी ऑनेस्ट। उसमें वो नहीं चलेगा कि जो इंटरनेट पे जो जेनेरिक सी चीज़ें हैं वो नहीं बोलनी है। एंड मुझे बहुत हेल्प किया, एज इन बहुत सारे पीआईज ने ज्वाइन किया मेरा नेटवर्क, एंड देन बहुत सारे इंडस्ट्री साइंटिस्ट ने किया, एंड बहुत सारे एस्पायरिंग साइंटिस्ट जो इंडिया से है और यूएस में है। तो ये पूरा एक अच्छा नेटवर्क बन गया, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम अंडरग्रेड, मास्टर्स, पीएचडी, पीआई और फिर सीनियर साइंटिस्ट जो इंडस्ट्री में है, ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये पूरा डेवलप हो गया एक एक नेटवर्क के रूप में लिंक्डइन पे। तो नाउ आई फील लाइक बहुत सारे मुझे जो डीएम्स भी आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूँ, बट कुछ डीएम्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत सीनियर पीआई लोगों से आए हैं, और एंड they just want to talk over a video call or something, and they just want to learn कि कैसे इंडस्ट्री, तुम्हारी टीम कैसे वर्क करती है, so that मेरी जो लैब है एकेडमिया में, मैं कुछ चीज़ें वो इन लोगों को मतलब उस तरह से ट्रेन करूँ कि दे बिकम इंडस्ट्री रेडी। एंड देन मुझे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिक टू इंडस्ट्री लियोजॉन्स होते हैं, जो कनेक्टर्स होते हैं एकेडमिया और इंडस्ट्री के, वो लोगों ने अप्रोच किया कि हाउ कैन वी टीच आवर स्टूडेंट्स टू बी इंडस्ट्री रेडी। एंड आई गॉट ऑफर्स कि यूनिवर्सिटी में टॉक देने के लिए, फिर सेमिनार्स, ऑनलाइन सेमिनार्स देने के लिए, स्टूडेंट्स की क्लास गेस्ट लेक्चर देने के लिए ऑफर्स आए। तो ये सब चीज़ें जब ओपन हुई, व्हेन आई पुट माई सेल्फ आउट इन द ओपन ऑन लिंक्डइन, व्हेन आई रियली टॉक्ड अबाउट माई वल्नरेबिलिटीज, जो अपन नहीं उतना ओपनली बोलते हैं। सैलरीज के बारे में कोई बात नहीं करता है कि इतनी सैलरी इतनी कम है, और ये प्रॉब्लम्स है लैब में, ये पॉलिटिक्स होती है, लाइक नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स। तो आई फील कि जैसे जैसे मैंने वो स्पेक्ट्रम ब्रॉडन किया, जैसे जैसे मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया, तो अनएक्सपेक्टेड लोगों से डीएम्स आए एंड आई स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद देम। जैसे मैंने एक बार एक आइडिया शेयर किया था
कि I want to start an app जिसमें students should be able to review and leave a rating for a PI कि ये लैब को 5 में से 3 स्टार कि ये घटिया है, ये इधर फंडिंग नहीं है, या ये PI बहुत टॉक्सिक है, या जो भी है. तो I just threw this idea in the open and दो IT वाले बंदे उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि वी वुड लव टू हेल्प यू इन दिस. और फिर हम लोगों ने थोड़ा काम भी किया, उसके ऊपर चल रहा है काम. बट देन ये चीज़ मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं की थी कि ये ऐसे रिस्पॉन्स आता है लिंक्डइन वगैरह पे. और मैंने तो जस्ट ऐसे ही थ्रो किया था कि लाइक जस्ट टू लाइक शेयर दैट आई हैव दिस आइडिया इन माइंड. आई डोंट नो हाउ टू डेवलप इट, आई एम नॉट एन इंजीनियर, मुझे ऐप वेब का कुछ भी पता नहीं है. बट पीपल कनेक्ट विथ यू इन दैट वे कि मैं मेरा जॉब कर रहा हूँ बट देन साइड प्रोजेक्ट की तरह से आई कैन हेल्प यू आउट, एंड उसमें कोई मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन अभी नहीं रहती है. बट देन दे ऑल्सो गेट टू लर्न, आई ऑल्सो गेट टू कोलैबोरेट. तो ऐसी चीज़ें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं. सो आई फील कि दैट्स व्हाट आई टेल पीपल कि गेट इन द हैबिट ऑफ राइटिंग. it can start with journaling. You know, when we feel कि हमें कुछ लिखना है, हमें thoughts लिखना है, when you really start writing you will realize कि उतने कोई thoughts थे भी नहीं actually mind में. You feel कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, but then when you start writing you feel कि खत्म हो गया, एक दो सेंटेंस में खत्म हो गया, इतना ही था thought. So when you actively train your mind कि मेरे को रोज लिखना है या मेरे को वीक में 3 बार लिखना है और I have to put it out on LinkedIn कि not for likes, not for comments, but just to put it out. तो you train yourself and you learn कि मैं क्या लिखता हूँ जिससे जो लोग कनेक्ट करते हैं और जो ज़्यादा रिलेटेबल है, and that's when you get better in writing. और I feel कि वो राइटिंग की हैबिट में आना बहुत ज़रूरी है. और LinkedIn पे when you write more often and when you connect with more and more people, बहुत opportunities खुलती हैं जो you wouldn't even like imagine. ऐसे लोग तुमसे जुड़ेंगे. और फिर अपना बहुत नैरो थिंकिंग है, जॉब लेनी है, आगे यही करना है. बट देन और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए और जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं. तो इट्स नॉट जस्ट जॉब वाले लोग ही कांटेक्ट नहीं करेंगे. वो तो डेफिनेटली रिक्रूटर्स के तुम नज़र में भी आ जाते हो कि दिस पर्सन इज़ वेरी एक्टिव और इसके इतने इतने फॉलोअर्स हो गए और इसकी ये प्रोफाइल है. सो इफ एनी जॉब कम्स अप आई विल बी श्योर टू रीच आउट टू दिस पर्सन. वो तो ऑब्वियस है कि हो ही जाता है. बट उसके साथ में नॉन साइंस लोगों से भी तुम जुड़ते हो और भी चीज़ें खुलती है कि अच्छा ये भी कर सकते हैं अपन. तो I feel that's why like LinkedIn is very very important, not to just get a job but to really like create a personal brand. That's quite good, and I can see that happening. So if I imagine myself as a recruiter, I would definitely trust someone who has put themselves out there, who openly talks about their problems, and I can see whatever they've done in their profile. And I feel ये थोड़ा unrelated है, but sort of mentally I would feel that I can trust their profile a bit more than कोई random नया account मेरे पास आया. Let's say if I'm just looking at LinkedIn accounts, so कोई random नया profile आया, even though सब कुछ इतना सारा लिखा हुआ है profile में, I would trust that a bit less someone with an established presence. Right. I think you said it correctly. You should be active on LinkedIn to build trust and credibility. You know, that's enough. Like don't think about it कि इससे कुछ मेरे को बड़ा कुछ मिलने वाला है, बट ये ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी से बड़ा भी कुछ नहीं है. तो थिंक ये डेफिनेटली डेवलप हो जाता है LinkedIn. Yeah. तो आपने बोला कि आप अराउंड 2011 से इंडिया से बाहर हो. इंडिया में आने का कोई प्लान है आपका इसके बाद, या फिर अभी नियर फ्यूचर के लिए अभी है कि अभी नोवार्टिस में डेवलप करना है या फिर उस एरिया में डेवलप करना है यूएस में? Yeah, I mean, see, I don't see it as a permanent either or thing. Right now, you know, अच्छा चल रहा है. I'm focused on building my career here. और इधर बहुत साल अब निकाल दिए हैं, तो फिर I feel जिस चीज़ को इतना टाइम दे दिया है करियर बिल्ड करने में, तो उसको अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. बट यू नो
right now I don't think about moving back, but long term may I want to contribute back. Because like in the sense that it won't be like maybe कि खुद वहां पे आके मैं काम कर रहा हूँ या मैं खुद कुछ like in person में आ रहा हूँ, but then I would like to contribute back, whether that's through mentoring or like building platforms or like creating opportunities for others. Because in many ways the journey started in India, so for sure like वो तो है मेरे mind में, to in future maybe like create like digital products or like content which is like free to everyone in college or like universities who are trying to figure out career in biotech. But then yeah, for now like I think I will most likely be continue to living here. So That makes sense. It's a bit hard to move away once you've worked really hard to establish yourself. You made friends. उस जगह में काफी अलग अलग जगह में दोस्त होंगे, अपना पूरा सब छोड़ के जाना काफी अजीब सा लगता है. yeah, and I've never worked in India. मैंने कभी first job मेरा इधर ही था आके. So I have no idea like मेरे को वो anxiety देता है वो competition, वो exams. Yes. तो वो बहुत ही dangerous है अपने mind में. तो वो एंगल से सोच नहीं पाता मैं कि जॉब सर्च इंडिया में like I don't know how easy or difficult it is. Like I mean I'm still connected with my friends जिनसे बात होती रहती है, and I do get updates कि क्या चल रहा है, but then अभी के लिए तो like मेरी पूरी ट्रेनिंग एजुकेशन अब वैसे थोड़ा यहाँ के स्टाइल में बेंड हो गई है. तो देन थिंकिंग अबाउट वापस से वो इंडिया टाइप का थिंकिंग वापस से डेवलप करके वापस से वैसे जॉब अप्लाई करना मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता है. तो लॉट ऑफ वर्क. मुझे भी काफी सुनाई देता है अपने दोस्तों से उनकी जॉब्स का कैसा चल रहा है, वो सब कह रहा है, वो सब सोच देख के लगता है उफ नहीं. I know. Thank you very much. That was very helpful. Thank you very much for your time. बहुत सारी इंसाइट्स मिली हमें कि आपने कैसे अपनी जर्नी गई थी, कैसे आपने अपनी प्रेजेंस बनाई पूरे जीन थेरेपी के फील्ड में, कैसे अपना लिंक्डइन प्रेजेंस बनाई, सब बहुत हेल्पफुल थी. आई एम प्रीटी श्योर काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास भी बाकी लोगों से जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर your LinkedIn to be full. 100%. Yeah. I mean, I'm more than happy to help people, or LinkedIn पे if they want to join, feel free to drop messages. I do read them, and like थोड़ा delay हो जाता है response देने में, but then हो जाता है eventually. और thank you for inviting me for this podcast. अच्छा था. मैंने the questions that I had in mind कि मैंने जो prepare किया था, I left that on the side, and I think it was a very friendly और बहुत ही अच्छी conversation थी that I didn't have to go look at my notes and all of that. So thank you Anirudh and Ritika for your time. And yeah, let me know if you want to reach out for something else also, and I will also reach out if I think of something and to do together and collaborate in future. So yeah, good to see you guys. Thank you very much for your time. Hopefully we'll see you again sometime soon. Yeah, of course. So thank you so much. Jay. Like it was really great conversation. मैं पूरे टाइम मतलब बैठ के सुन रही थी, and it was very relatable as well. मतलब रिसर्च में ना ये सारी चीजें इतना कॉमन होती है, तो आई गेस जो भी रिसर्च परस्यू कर रहा है whether in academy or industry, that person will definitely connect with this conversation. So it was really great listening to you. मतलब कुछ पॉइंट्स तो मुझे भी ऐसे हो रहे थे कि oh that is so true. So it was like that कि मतलब जहाँ पे जब आपने बोला ना that कि जनरल कॉन्वर्सेशन you should ask कि
लोग पीएचडी क्यों नहीं करते, बिकॉज दैट इज लाइक माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन टू एवरीवन आई मीट. मतलब कि इफ यू आर परस्यूइंग अ पीएचडी देन व्हाई, एंड इफ नॉट व्हाई, बिकॉज इंडिया में इट इज अ वेरी कॉमन कल्चर कि कुछ भी नहीं मिल रहा पीएचडी कर लो, इट्स लाइक दैट, राइट? एंड मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है उस चीज पे. सो दैट इज समथिंग कि ऑलवेज आस्क टू पीपल कि यार क्यों पीएचडी क्यों करना है, मतलब व्हाई नॉट ट्राई समथिंग एल्स, मतलब go and find something else, build skills or anything. And maybe that is one of the main reason of me joining Sai Astra, because that irritation was there. And when I connected to Sai Astra na, so it was the main goal कि yeah, people should know कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिशनल पाथ के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं रिसर्च में भी. ऐसा नहीं है कि बस पीएचडी में आप एंटर कर लो एंड इट्स जस्ट एंड ऑफ द वर्ल्ड. इट्स नॉट लाइक दैट. So I guess definitely we will connect in the future as well. अगर कभी भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे I guess your expertise will be helpful to us. So I'm sure I guess we can connect, right? Yes, 100%. Yeah. I'm looking forward to it, and अच्छा था. I'm glad to hear कि relatable था. Because yeah, it's true कि like biotech used to be a fairly new field, but अब थोड़ा evolve हुआ है, तो there are Exactly. more opportunities. It's not just वही track follow करना जरूरी नहीं है अब. तो yeah, for sure. Yeah. And thank you so much, and have a good night, guys. All Awesome. right then. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Anirudh.